اعظم نے کہا تھا کہ آپ اپنے مندروں میں، اپنے چرچز میں جائیں، اپنی عبادت خانوں میں جائیں، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اب جو ہماری موجودہ حکومت ہے وہ ان کا کچھ رویہ یہ ہے کہ آپ مندروں کو جلائیں، آپ چرچز کو جلائیں، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں سب کے اوپر ہمیں شیم 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 ضرور کہنا چاہیے. شیم شیم شیم. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ابھی بیوش نے کہا کہ شانتی نگر، گوجرا اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہوئے ہیں اور بلاسفیمی لاء کے بے شمار واقعات ہوئے ہیں جو جھوٹے قرار دیے گئے ہیں. اگر ان کے اوپر وہی FIR کٹائی جائے اور حکومت ان کے اوپر باضابطہ کارروائی کرے اور ان کو سزا دلائی جائے تو یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ ہمارے یہاں پہ اس طرح کے واقعات کو مسلسل دہرایا جائے. یہاں پہ ہماری ریاست کا جو رٹ ہے، ریاست کی جو رٹ ہے وہ ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی. تو یہ ایک نہایت شرمندگی کا مقام ہے. ہم ہر طرح، کیونکہ بائبل مقدس کتاب ہے، ہم اس بات کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ قرآن کی ہم بالکل اسی طرح سے احترام کرتے ہیں. اور ایک چیز میں یہ بتاؤں، جیسے کہ ابھی شیما جی نے ذکر کیا کہ وہ الٹریٹ لوگ تھے، اور کون ایسا بہادر انسان ہوگا جو 97% آبادی میں اپنی تصویر بھی اس کے اوپر لگائے، نہ وہ بھی ہو، نہ خواندہ بھی ہو، اور اس کے باوجود اس کے خلاف FIR بھی کٹائی جائے. اور لا انفورسمنٹ ایجنسی اس بات کے اوپر سب کو بتا بھی رہی تھی کہ آپ لوگ خاموش ہو جائے کہ ان کے خلاف FIR کٹ گئی ہے. لیکن جو مشتعل ہجوم ہے، کیونکہ ہماری حکومت کی کہیں پہ رٹ نہیں ہے، ہجوم ہی اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں، ہجوم ہی اس کے اوپر قانون سازی کرتے ہیں، اور ہجوم اپنی مرضی سے یہ تمام کام کروائے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہماری مائنورٹی رائٹس کی جو ڈیمانڈز ہے وہ یہ ہے کہ ہجومی تشدد کے اس واقعے کے سلسلے میں فوری طور کے اوپر FIR درج کی جائے اور واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک غیر جانبدار ٹاسک فورس مشترکہ تحقیقی ٹیم قائم کی جائے، جس میں لا انفورسمنٹ کا کردار ان کی پیشگی کارروائی کرنے اور شر پسند عناصر کو گرفتار کرنے میں بھی ناکامی بھی شامل ہے. غیر جانبدار انکوائری کے بعد ملوث پائے جانے والے تمام شر پسند بالشمول حکومت یا لا انفورسمنٹ کے افسران کو گرفتار کیا جانا چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق ان کو سزا دینی چاہیے. مقامی علماء کے کردار کی تحقیقات بھی کی جائیں اور جو بھی مولوی ہجومی تشدد کو ہوا دینے میں ملوث پایا جائے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. یہ اس لیے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا کہ پریویسلی جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے. تو یہاں پہ ہمارا یہ مطالبہ ہے، اولین مطالبہ ہے کہ جو اس کے خلاف ہجوم کو اکساتے ہیں اور ان کو 10,000 لوگ، تقریباً 5,000 کی آبادی، اپنے 500 گھروں جو ہے وہ اپنے یہاں پہ علاقے میں اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئے ہیں، اور تقریباً جو ہجوم تھا وہ ایک رپورٹ کے مطابق 10,000 کے قریب تھا. اور یہ وہ واقعات ہیں جو کہ حکومت ان ساری چیزوں کی ہمیں نظر آتا ہے کہ پشت پناہی کر رہی ہوتی ہے. ایک سوال ہے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں ویئر از دا اسٹیٹ آف پاکستان، ریاست پاکستان کی کہاں ہے ایسے انسیڈنٹس کے بعد؟ یہ جو اسلامسٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہماری وہ کہاں ہیں؟ کسی نے کیوں نہیں کی ہے؟ ویئر آر دا لا انفورسمنٹ ایجنسیز؟ اور یہ جو CII جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ کوئی جواب نہیں آ رہا ہے. ویئر از FSC؟ Where is the Lahore High Court, the Supreme Court? Where is the Vatican? Where is the UN agencies? Where are the human rights commissions? یہ human right violations نہیں ہو رہے ہیں کیا کہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے؟ اچھا جی، بات کرتے ہیں ہم ریٹ آف دا اسٹیٹ کی. چند ہی ماہ پہلے 9 مئی کا ایک سانحہ قرار دیا گیا 9 مئی کو، اور
DGISPR ने आके मीडिया के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके याद दहानी कराई गई, सबको इस बात का बाकायदा तौर पे यकीन दिलाया गया कि जी हमारे जो मुहाफिज हैं उनमें इतनी ताकत है कि जी वो दहशत गर्दों का सामना कर लेंगे, उनमें इतनी ताकत है कि शरपसर अनासिर का जो रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज करते हैं उनसे लिपट लिया जाएगा। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस याद दहानी को, इस इकरार को ज्यादा वक्त नहीं हुआ। अब के रियासत के सारे इदारों ने जब किसी पॉलिटिकल पार्टी पे एक्शन लेना हो तो क्रैकडाउन भी हो जाता है, तब पावर शो भी हो जाता है, तब ताकत जाहिर इस तरीके से होती है कि शायद जो मजलूम है उसे भी उठा के बंद करना पड़े तो उसमें कोई देरी नहीं की जाती, कोई तफरीक नहीं की जाती कि कौन सही है कौन गलत है, बस पावर दिखानी है तो पावर दिखाई जाती है। इसका यह मतलब है कि स्टेट के पास पावर की कोई कमी नहीं है। जब स्टेट के पास, जब रियासत के पास, जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास, जब पंजाब पुलिस के पास पावर की कमी नहीं है तो कल वो पावर कहां थी? अगर तो रिट मौजूद है, अगर तो पावर मौजूद है और वो कल नहीं जाहिर की गई, इसका मतलब वो सिलेक्टिव है, वो माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, वो कुछ चंद लोगों के मकासद के लिए जरूर होगी और उजागर होकर सामने आती है। लेकिन जहां पर माइनॉरिटीज की तहफ्फुज की बात की जाए तब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, वैसे तो शायद जो प्रोटेस्टर्स थे, जो मुजाहिरीन थे, उन्हें 9 मई को दहशतगर्द करार दे दिया गया, लेकिन कल जो दहशतगर्द थे उन्हें मुजाहिरीन करार देकर और यह बात की जा रही थी कि जी हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। हम किससे मुतालबा करें? हम किस IG से मुतालबा करें? हम किस पुलिस से मुतालबा करें जो IG दहशतगर्दों को मुजाहिरीन करार देता है और जो IG पहले से जस्टिफिकेशन देता है। कल रात तक की आप सहाफी बरादरी की तरफ से ही जो न्यूज आई है कि जी बयानिया पंजाब पुलिस की तरफ से ये आ रहा है कि जी ये सारा जो सानिया हुआ है इसके पीछे कुरान पाक की बेहुरमती की वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। तो आपने तो दहशतगर्दों की ऑलरेडी जस्टिफिकेशन भी देना शुरू कर दी है। आप किस तरीके की तफ्तीश करेंगे? No justice whatsoever. 2 से 3 दिन पहले इन्हीं चर्चेज में, फैसलाबाद के भी यकीनन सारे मसीहों ने अपने अपने चर्चेज के अंदर जो आज चर्चेज चलाए गए हैं, आजादी के नारे लगाए होंगे। इस चीज की अपने आप को भी मुबारकबाद दी होगी, साथियों को भी दी होगी कि जी हम एक आजाद मुमलिकत में रहते हैं। आज मैं आजाद फील नहीं कर रहा। ये किस बात की आजादी है? मेरे लिए आजादी नहीं है, मेरी कौम के लिए आजादी नहीं है। मुझे कल बता दिया गया, मुझे कल रियासत ने भी बता दिया कि जी अगर कोई आजादी इस मुल्क में है तो वो कम से कम माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ कि लब्बैक के नारे लगाए गए थे। सो द TLP is definitely involved in this. उनका नाम लेना शेम और उनसे निगोशिएट किया जा रहा है। Is this the state of Pakistan कि आप TLP से निगोशिएशंस में आ रहे हैं? एक चीज में सारी पॉलिटिकल पार्टीज मजम्मत करने में हम बहुत तेज हैं, क्योंकि रोज ही हमारे मुल्क का इस तरीके से काम है कि कोई ना कोई साना होता रहता है, कोई ना कोई मसला खड़ा होता रहता है और ज्यादातर माइनॉरिटीज के साथ ही होता है। और जब हो जाता है मसला उसके बाद सारे कंडेमनेशन की तो एक बिल्कुल लाइन लग जाती है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना वोट बैंक बनाने के लिए आज तक मजहब कार्ड प्ले किया है और मैं सबको इस बात का कसूरवार ठहराता हूं जो कल सानिया हुआ है फैसलाबाद के अंदर। सारी पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये आप सब की वजह से आपने इसके बीज बोए हैं जो कल ये सानिया हुआ है। आप सब सिर्फ कंडेमनेशन ना करें, प्रैक्टिकल स्टेप्स उठा के दिखाएं। नहीं तो आज मैं ये मानने पे मजबूर हूं कि आजादी मेरे लिए नहीं है। 14 अगस्त को मैं नहीं मना सकता। अस्सलाम वालेकुम। कल जो फैसलाबाद में चर्चिस के ऊपर और हमारे क्रिश्चियन भाइयों के घरों पे जो अटैक हुआ है, मैं और मेरी पूरी सिख बिरादरी पुरजोर मजम्मत करती है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, पंजाब हुकूमत क्या कर रही थी उस टाइम पे, जो सुबह 7 बजे से ये चर्चिस के ऊपर जो अटैक हो रहा था, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अटैक हो रहा था, तो सुबह 7 बजे का वाकया था।
تو ہماری پولیس کیا کر رہی تھی؟ پولیس نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ گورنمنٹ نے کیوں نہیں ایکشن لیا؟ تو آج بڑے افسوس کے ساتھ اس پریس کانفرنس کے اندر بولنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہمارے قائد کا میسج تھا 11 اگست کو، جو ہمارے قائد نے اپنی اسپیچ کے اندر کہا تھا پاکستان کے اندر بسنے والی تمام مائنورٹی اپنے مذہبوں کے اندر اپنی عبادت گاہ جو ہے وہ کھلی آزادی سے کرے گی۔ تو یہ ہمارے قائد کا پاکستان ہے، یہ ہمارے ملک کا جو ہے یعنی پاکستان ہے، یہ ہمارا آئین ہمیں کہتا ہے۔ کیا وہ جو ہے یعنی چرچز کے اوپر جو اٹیک کیا گیا اور کرسچن کمیونٹی کو اٹیک کیا گیا، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ وہ ان کا کوئی تعلق کمیونٹی سے نہیں تھا، مائنورٹی نہیں تھے وہ؟ تو خدایا میں اپیل کرتا ہوں پورے پنجاب گورنمنٹ کو، ایجنسی کو، فورسز کو، جو ہے یعنی پنجاب کے اندر جو اٹیک ہوا ہے اور جن لوگوں نے چرچز کے اوپر اٹیک کیا ہے انہیں فوری طور کے اوپر انہیں گرفتار کیا جائے، ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی جائے اور انہیں جو ہے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ آج ہم یہاں پہ جتنے لوگ یہاں پہ مدعو ہے، صرف ان کا میسج یہی ہے، انسانیت کا اور ہمارے قائد کا جو میسج تھا وہ آج ہمیں نہیں دکھ رہا ہے کہیں سے۔ ہمارا پاکستان جو ہے یعنی وہ محفوظ نہیں ہے، کمیونٹی محفوظ نہیں ہے۔ خدایا میں ایجنسیز کو اپیل کرتا ہوں ہماری اس مانگ کو پوری کی جائے اور ان ظالموں کو جو ہے یعنی گرفتار کیا جائے، ان ظالموں کو سزا ملنی چاہیے۔ सर्व मंगल मंगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मैं प्रोफेसर मनोज चौहान, हिंदू रिलीजियस स्कॉलर ऑफ पाकिस्तान, आज एक सवाल करना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आज पाकिस्तान मिनॉरिटीज के लिए यतीम हो गया है। शेमन! कल रात को जब 1 बजे में फ्री हुआ और जब मैंने देखा पूरी दुनिया इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया है कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज का जो हाल है वो आपके सामने है। इदारे कहां गायब थे जब भवन शरीफ का जो पंजाब में वाकया हुआ, मंदिर को तोड़ा गया, जब कर्क में हमारी समाधि तोड़ी गई और आज 11, 12, 15 चर्चेस को जलाया गया। ये केयरटेकर गवर्नमेंट कहां है? इससे पहले जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो कहां है? इदारे कहां है? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में एक सोची समझी साजिश के तहत मिनॉरिटीज को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। और आज सवाल खड़ा हो गया है कि तहफ़्फ़ुज़ मिनॉरिटीज का पाकिस्तान में नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान को बहुत बदनाम किया इसके लिए। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, केयरटेकर गवर्नमेंट से और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे ये अपील करता हूं कि आप प्लीज यू विल कंसीडर सीरियसली सच अ मैटर, क्योंकि एक बार फिर आपने अक़लियत को ब्लास्फेमी का कार्ड इस्तेमाल किया है और एक स्लोगन लगाया जाता है, क्या पाकिस्तान आपके बाप का है? पाकिस्तान में अक़लियत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, जाने कुर्बान की। उन माओं ने अपनी गोदें उजाड़ी हैं, उन बहनों ने अपने भाई उजाड़े हैं और पाकिस्तान आजाद हुआ है। आपके बाप का पाकिस्तान नहीं है, हम सबका पाकिस्तान है। और चर्चेज अब जलाए गए, पूरी दुनिया में इसका चैलेंज होगा, एहतजाज होगा, प्रोटेस्ट होगा और इस परचम के साए तले, इस स्लोगन के साए तले, इस प्रोटेस्ट के साए तले हम सब एक हैं और आपने इस चीज को देखना है। मैं आखिरी में एक मैसेज करूंगा गवर्नमेंट के लिए, इंटेलिजेंस इदारों के लिए कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इन अंधेरों का सीना चीर कर नूर आएगा और तुम फिरौन हो तो मूसा भी जरूर आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। कल के सानहे ने ये साबित किया है कि ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान नहीं। मेरे लिए अगले साल ये चैलेंज है कि मैं 16 अगस्त को यौम स्याह मनाऊंगा या मैं यौम आजादी मनाऊंगा। मैं आइंदा साल के लिए खादिम होते हुए, मजहबी रहनुमा होते हुए यौम स्याह को तरजीह दूंगा। और मैं ये पूछना चाहता हूं, हुकूमत से ये पूछना चाहता हूं कि वो जो सारा वक्त आपने दिया जलाने के लिए, तोड़ने के लिए, मिसमार करने के लिए, उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि आपने हमें हजूम के हवाले कर दिया ताकि वो हमारी इज्जतों को पामाल करे,
हमारे चर्चेस को जलाएं, हमारी मुकद्दस किताब को जलाएं, जो मर्जी करें। मैं ये पूछता हूं कि ये कौन सा निजाम और ये कौन सी रियासत है जहां अक़लियतें गैर महफूज हैं। सो मैं ये कहना चाहता हूं इंसाफ मुहैया करने वाले इदारों से कि खुदारा हमारी इज्जतों की और हमारे इबादत खानों की, हमारी मुकद्दस किताबों की और शुआर की हिफाजत की जाए। हमें यह एहसास हो कि यह मेरा पाकिस्तान है। मुझे यह एहसास हो रहा है कि यह तेरा पाकिस्तान है, मेरा पाकिस्तान नहीं है। लिहाजा अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और जो भी इस साने में जो फिल हकीकत मुजरिम है उन्हें करार वाकई सजा देकर एक इबरत को कायम करें और हमें भी यह एहसास हो कि हम इस मुल्क के बासी हैं और इस मुल्क के मकामी लोग हैं। कहीं हम बाहर से नहीं आए, हमारी पैदाइश यहीं की और हमारे अजदाद भी यहीं के हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमसे यतीमों वाला सलूक, सुतेलों वाला सलूक न किया जाए। जब हमारे चर्चेस में 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाने के लिए हमारे चर्चेस में प्रोग्राम अनाउंस हुए तो हमारे ही बहुत सारे मसीही भाइयों ने इस बात का एतराज़ किया कि हम लोग अपने चर्चेस में 14 अगस्त क्यों मनाते हैं और क्यों मिली नगमे गाते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ पे बहुत एतराज़ किया कि हम मसीही हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम जश्न आज़ादी मुल्क पाकिस्तान को आज़ादी के लिए हम उसके लिए दुआ गो भी हैं और हम मिली नगमे भी गाते हैं और हर चर्चेस में पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए दुआ की जाती है और हमेशा हम दिगर मज़ाहिब को जो है रिस्पेक्ट करते हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे के मज़हब को रिस्पेक्ट करें और अगर इस तरह का कोई वाक़या होता है तो बग़ैर उसकी इंक्वायरी किए उस पर एलिगेशन नहीं लगनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि हम सारे मुत्तफ़िक होकर हम रियासत से इस बात की डिमांड करते हैं कि इस फैसले की इंक्वायरी करवाई जाए और जिन लोगों ने ये शर फैलाने की कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त इंतजामात होने चाहिए। चर्चेज इस वक्त बहुत जो है दुख में है और हमारे लिए बहुत तकलीफ दह बात है। जैसे अगर कुरान पाक की बेहुरमती होती है तो आप लोगों के जज्बात मजरूह होते हैं, हमें भी उतनी ही तकलीफ होती है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त शायद रियासत और दिगर मज़ाहिब को इस बात की कोई तकलीफ नहीं हुई जब चर्च की क्रॉस को गिराया जा रहा था, जब वहां पर लोगों को मारा जा रहा था, बाइबलों को जलाया जा रहा था, तो वहां पर कहां थी वो उस वक्त पुलिस? जब एक इंसान कोई गुनाहगार भी नहीं होता तो पूरा मुआब आके उसको अरेस्ट करता है। तो जब इतना बड़ा वाकया हुआ तो पंजाब पुलिस उस वक्त कहां थी? हमारी रियासत क्यों इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती? क्यों कानून साजी नहीं होती? माइनॉरिटीज क्यों इतनी गैर महफूज है? हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के वासी हैं, हमें इस मुल्क में रहना है। माइनॉरिटी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। प्रोटेस्ट अनाउंस करना चाहती हूँ माइनॉरिटी हकूक मार्च और औरत मार्च की तरफ से हफ्ते वाले दिन शाम 5 बजे 3 तलवार पर सिट इन किया जाएगा और हम वहां पर धरना देंगे और तमाम साथियों से और मीडिया से दरखास्त है कि हमारा साथ दें। आप सवालात कर सकते हैं। हम कैंडल लाइट भी वहां पर विजिल करेंगे। हम ये सारी चीजें कंडेम करते हैं जो इस्लामाबाद में हुआ, उसके पे भी हमने कॉन्डेमनेशन किया था। मुख्तसर से सवाल कर लें ताकि हम लोगों को हमारा टाइम ऊपर हो गया। थैंक यू। नहीं, अभी 21 चर्चेस सबके नाम लिए गए हैं, आप लेट आई थी। वी नेम्ड ईच एंड एवरी वन, लिस्ट पूरी पढ़ी गई है। ये तहकीक भी हमें करनी है तो फिर पंजाब पुलिस भी रिजाइन कर दे, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी रिजाइन कर दें, क्योंकि हमारे टैक्स का पैसा लेके ही, रियासत का पैसा लेके ही ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पंजाब पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनका काम है ये तहकीक करना। और दूसरी बात, जैसे बैरिस्टर लूक ने बताई कि सुबह 7 बजे FIR कट चुकी है। FIR का मतलब है कि रियासत ने एक एक्शन ले लिया है, चाहे कि वो FIR के बाद वो जो अक्यूज्ड हैं वो प्रूवन गिल्टी या प्रूवन इनोसेंट, वो सजा भी हो सकती है, सजा नहीं भी हो सकती उन्हें, लेकिन उस 7 बजे से लेकर रात 7 बजे के बीच में 21 चर्च जलने का मौका किसने दिया? हमारा सवाल ये है, जवाब के मुंतजर हैं।
کئی دفعہ ججمنٹس آئی ہیں. 2014 کی اگر آپ اس کو دیکھیں آنریبل تصدق چیف جسٹس تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کمیشن بنایا جائے جس میں ریپرزینٹیٹیوز ہوں, مگر 4 سال, یہ 2014 کی بات ہے, 4 سال تک کچھ بھی نہیں ہوا. 4 سال کے بعد ایک آدمی کا 1 مین کمیشن بنا. تو یہ ہم کیا کریں؟ مطلب دس از واٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان ڈز. میں اس کا جواب دینا چاہوں گی. آپ جب ان کو دہشت گرد قرار نہیں دیتے, سانحہ جوزف کالونی لاہور جس کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے, وہاں پر ایک شراب پہ لڑائی ہونے والے ساون مسیح کو تو سزائے موت سنا دی گئی, لیکن جنہوں نے کرسچنوں کو زندہ جلایا گیا, دہشت گردی برملا دن دہاڑے دہشت گردی ہوئی, ان کو سزا نہیں ملی. سانحہ شانتی نگر ہوا, سانحہ گوجرا ہوا, آج تک ان کو دہشت گردی قرار دیا گیا, ان کو سزائیں نہیں ہوئی, الٹا FIR ہمارے خلاف درج ہو جاتی ہے. ہم ہمیشہ سوال اٹھاتے ہیں, لیکن ہمیں ایک اور مندر پہ حملہ دکھتا ہے, چرچز جلتے دکھتے ہیں, مقدس کتابوں کی, بائبل مقدس کی بے حرمتی دکھائی دیتی ہے, کراس کو جلایا جانا دکھائی دیتا ہے. ہماری ساری امیدیں دم توڑ چکی ہے. اسی لیے آج ہم نے حکومت پاکستان سے بڑھ کر اقوام متحدہ اور عالمی اداروں سے بھی اپیل کی ہے کہ اب انصاف ہو جانا چاہیے. اس میں یہ ایڈ کر دوں, 2003 میں, 2009 میں, 2010 میں, مطلب ہمارے پاس پوری لسٹ ہے کہ مس یوز آف بلاسفیمی لا کی, کہ کس کس کو پکڑ کے مس یوز کیا گیا ہے بلاسفیمی لا کا. اور آخری بات یہ کہ اس سال 2013 اب تک پورا سال بھی نہیں گزرا ہے, 14,000 سے زیادہ کرسچنز ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں, 20,000 سے زیادہ ہندوز ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. ہم چاہتے کیا ہے پاکستان کو بنانا؟ ایک افغانستان بنانا چاہتے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی 8 سال کی بچی کو بھی ایجوکیشن کی اجازت نہیں ہے. کیا جہالت ہو جائے گی اس ملک میں؟ کس قسم کا ملک یہ بننا رہ جائے گا؟ گھوٹکی میں 2019 میں واقعہ پیش آیا تھا. اس ٹائم آپ کے وزیر اعظم 2019 میں وہ یونائٹڈ نیشنز جا رہے تھے, وہ سیم طرح کا واقعہ تھا, مندر مسمار کر دیا گیا تھا. آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جب آپ کی ریاست, آپ کا اسٹیٹ اس کو ایکٹ آف ٹیررزم مانتا ہی نہیں ہے تو پھر انصاف کی توقع کیسے کی جائے گی؟ تھینک یو.